So last lecture we initiated discussion on dividend taxation, but we could not finish. This lecture we should finish whole IFRS chapter. So आज का target वही है. So dividend. So far as dividend is concerned, we need to discuss a dividend taxation in two hands. Okay, one is a domestic company and another one is shareholder. Okay, domestic company and shareholder. So I told you about five things. Okay, there are six types of dividend out of five dividends in company's hand. There are these dividends. Please understand. Declared dividend. Declared dividends means real dividend which is declared by the company in AGM. This is first. And secondly, deemed dividend under section. Deemed dividend under section 222, clause A, comma clause B, comma clause C, and comma clause D. On this five dividend, company will pay tax. Company has to pay tax. Okay. Under section 1150. Company pays tax under section 1150. And how much is that tax? So that tax is a 15%, but there is a special way to compute this particular tax. This is 15% on dividend, and dividend is a net figure. What I wanted to say, dividend as a net figure is this: dividend can be given only to shareholder after paying dividend distribution tax, and therefore dividend which reaches to the shareholder is a net figure. We have to gross it up, and whenever we have to gross it up, we have to divide by the net percentage. You know that particular formula where whenever we gross up 20% profit on selling price and 20% profit on cost price. So when we say 20% profit on cost price, तो हम 100 plus 20 करते हैं, फिर 120 होता है. लेकिन अगर मैं बोलूं 20% profit on selling price is 100, okay, so profit is 15, so cost will become 85. अगर मैं 15% profit on sale price बोलता हूं, तो my selling price will remain 100, profit will become 15 and cost will become 85. Similar formula here I am taking. 15% is actually like this: 15 divided by 85, because the dividend is a net figure. Dividend is a net figure. फिर मैंने क्या बोला? This particular dividend distribution tax has to be mandatorily increased by 12% surcharge and 4% cess. This you already know. Therefore, effective rate of tax which comes here is 15 divided by 85 is into 100 is equal to 17.64. This is the percentage plus 4%. Sorry. 15 divided by 85 into 100. This is 17.647 percentage plus 12%, which is a surcharge, which is 19.76 plus 4% cess. So it becomes 20.555 percentage effective rate of tax. Okay, this happens on these five dividends. Okay, so what about the next dividend? The next dividend is deemed dividend under section 222E. Under section 222E, this is little kind of crime in case of company. This is loan taken from company. Okay, now Elite Gurukul Limited is company founded by me, but does it mean my money and company's money is the same money? क्या लगता है आप लोगों को, हम दोनों का पैसा एक ही है क्या? Though company is founded by me, I have 76% shareholding in that particular company, लेकिन कंपनी का पैसा मैं कभी भी यूज कर सकता हूँ क्या अपने पर्पस के लिए? मुझे कपड़े कितने लेने हैं? नहीं. बैंक अकाउंट भी मेरे पास ही है, पासवर्ड वगैरह सब मेरे पास ही है. कभी भी नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि you know that particular law, company and shareholders are distinct persons. ठीक है ना? Once money goes into the company, it's a company's money and you can't use that money randomly. But there are people who are doing this, and to punish them, this particular section was introduced in income tax, section 222E, where the shareholders borrow loan from company and that will be taxable as a dividend. ये चोरी है. ABCDE जो है ना, that is the dividend tax का चोरी, उसको पकड़ा गया है बाद में, and they have created some anti चोरी provisions. तो यहाँ पे जो टैक्स लगता है ना अंडर सेक्शन 1150, इसका रेट ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे पनिशमेंट ज्यादा देनी थी हमें, 30%. लेकिन यहाँ पे 30% का कंपटीशन कैसे होता है पता है?
यहाँ पे सिंपल कंप्यूटेशन होता है। सिंपल कंप्यूटेशन मतलब एकदम सिंपल, ठीक है ना। 30% टैक्स रेट प्लस 12% सरचार्ज प्लस 4% सेस, ठीक है ना। तो 30 प्लस 12% 33.6 प्लस 4%, तो यहाँ पे लगता है आपको टैक्स 34.944। इतना ज्यादा टैक्स कंपनी ने डिविडेंड के ऊपर भरा हुआ है। बाय द वे आपको और एक लॉजिक बता देता हूँ। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस कुछ इस तरीके से होता है। कंपनी पहले अपनी इनकम बुक करती है, फिर कंपनी अपने सारे एक्सपेंस डिडक्शन ले लेती है, देन कंपनी रीच एट पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इस पे कंपनी टैक्स भरती है, ठीक है ना। कंपनी का इनकम टैक्स लग जाता है, कुछ भी जो भी होगा, 22% का भी है, 25% का भी है, 30% का भी है, ठीक है ना। कंपनी का अपना टैक्स लग गया यहाँ पे। अब कंपनी का अपना टैक्स डिडक्ट हो गया, तो कंपनी ने टैक्स भर दिया है ऑलरेडी, और उसके बाद आएगा पैट। क्या आएगा? पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को डिवाइड किया जाएगा एज डिविडेंड। प्लीज अंडरस्टैंड करो, इसको क्या दिया जाएगा? डिविडेंड। और इसमें से जितना भी डिविडेंड देंगे उसके ऊपर पहले क्या भरना पड़ेगा उनको? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अंडर सेक्शन 1150। तुमको समझ रहा है, कंपनी ने दो बार टैक्स भरा, एक बार खुद के इनकम के ऊपर टैक्स भरा और एक बार शेयर होल्डर के इनकम के ऊपर टैक्स भरा, तो दो बार टैक्स हो गया ये इनकम। डू यू अंडरस्टैंड दिस? ये कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस तुमको समझ रहा है क्या? कंपनी ने ऑलरेडी 30% का टैक्स भर दिया अपने खुद के प्रॉफिट के ऊपर, और फिर जो बचा हुआ प्रॉफिट था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दैट दे वर सपोज्ड टू डिवाइडेड एज अ डिविडेंड among the shareholders, but before dividing that they must pay dividend distribution tax under section 1150। do you understand this कि ऑलरेडी दो बार टैक्स हो चुका है। हेलो, तुमको समझा है मैंने क्या बोला? अब मुझे तुमको एक क्वेश्चन पूछना है। जब इतना टैक्स ऑलरेडी कंपनी ने भर दिया है, अपने प्रॉफिट के ऊपर भी टैक्स भर दिया है, शेयर होल्डर के डिविडेंड के ऊपर भी टैक्स भर दिया है, तो मुझे बताओ, जब हम इस शेयर होल्डर को डिविडेंड देंगे, तो इसके हाथ में ये डिविडेंड टैक्सेबल होना चाहिए कि एग्जेम्प्ट होना चाहिए? इतना बता दो बस। शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होना चाहिए या एग्जेम्प्ट होना चाहिए? बोलो। पांडा ने कुछ बोला मुझे। एग्जेम्प्ट होना चाहिए। कौन से सेक्शन में एग्जेम्प्ट हुआ है पता है आपको? ये अंडर सेक्शन 1034। तो जब हम एग्जम्पशंस की बात करते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि कहीं इक्विटी शेयर होल्डिंग, इक्विटी शेयर्स को इनकरेज तो नहीं किया जा रहा कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए? ऐसा कुछ नहीं है। ऑलरेडी हमने इतना सारा टैक्स लगा के रखा हुआ है, इसलिए हमने शेयर होल्डर के हाथ में एग्जाम रखा हुआ है। वैसे भी निर्मला सीतारमन आंटी जो है, अभी उस टाइम उन्होंने बोल दिया है कि नेक्स्ट ईयर से ये जो 1150 होगा उसको हम रिमूव करेंगे और शेयर होल्डर के हाथ में टैक्स लगना चालू हो जाएगा। लेकिन वो नेक्स्ट ईयर की बात है, अपन अभी अपनी ईयर की बात करते हैं, ठीक है ना। तो अपनी ईयर के लिए तो यही लॉ है कि अभी ये एग्जेम्प्ट होगा सेक्शन 1034 में। क्यों एग्जेम्प्ट होगा उसका मुझे लॉजिक बताना था, उसके लिए मैंने इतना सब आपको स्टोरी बताया कि देखो ऐसा ऐसा यहाँ पे होता है। तो कैन आई गो अहेड विद दिस पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग कि कंपनी टैक्स भरती है इसलिए शेयर होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट है। इतना ही मुझे बताना था। कंपनी ने ऑलरेडी अच्छा खासा किया है, देयरफॉर इट इज एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। ओके, सो दिस इज द लॉजिक, व्हाई इज इट एग्जेम्प्ट अंडर इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। चलो अभी उसमें से क्या करेंगे, हमारे हैंड रिटन नोट्स में से हम कुछ मार्किंग करके चलते हैं। तो यही मैं आपको अभी चार्ट पढ़ा रहा था। पार्ट ए में हमने कंपनी की बात की और मैंने बताया आप लोगों को, कल भी बता रहा था कि ये जो है कंपनी के हाथ में देखो ना, यहाँ पे 15% का टैक्स लग गया और यहाँ पे 222 पे 30% का टैक्स लग गया है अंडर सेक्शन 1150। कंपनी ने टैक्स भर दिया है। तो अभी शेयर होल्डर की बात करेंगे। सर ये शेयर होल्डर की बात करेंगे तो शेयर होल्डर के हाथ में क्या होगा? देखो, शेयर होल्डर के हाथ में 5 डिविडेंड। कौन से 5 डिविडेंड सर? वो 5 डिविडेंड जिसमें कंपनी ने इफेक्टिवली 20% टैक्स भरा है। ये वाला समझ रहे हैं ना? कंपनी ने इफेक्टिवली कितना परसेंट टैक्स भरा हुआ है? 20% टैक्स भरा है। यहाँ पे तो कंपनी ने 30% प्लस भर ही दिया है। तो मैं आपको पूछ रहा हूँ कि ये पॉसिबली फिर से क्या क्या ये टैक्स होना चाहिए जिसमें कंपनी ने ऑलरेडी 30% भरा है? हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स कितना है इंडिविजुअल का कंट्री में? इंडिविजुअल का हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स कितना है मुझे बताओ? हमारे देश में इंडिविजुअल का हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स कितना है? हेलो, अरे इनकम टैक्स स्लैब पूछ रहा हूँ, हाईएस्ट स्लैब कितने का है? क्या परसेंटेज का है हाईएस्ट स्लैब? और कितने लाख के बाद लगता है?
टेल मी। आफ्टर 10 lakhs हाँ लेकिन रेट भी तो बता पांडा, आफ्टर 10 लाख तो ठीक है, रेट क्या है? 40 30%। ना मतलब आप समझ रहे हो ना कि 30% के ऊपर तो टैक्स नहीं लगना चाहिए इंसान को। अब यहाँ पे कंपनी ने ऑलरेडी 30% भर दिया है। आपको मैंने ये तो बताया होगा, वो तो याद होगा ना, 1034 में एग्जम्पशन है, लेकिन अप टू कितना लाख? अप टू देयर इज अ लिमिट ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जम्पशन, अप टू हाउ मच? अप टू 10 लाख एग्जैक्टली। लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूँ पता है, ये अगर 222E का डिविडेंड होगा ना और 1 करोड़ का भी होगा ना, तभी भी शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल नहीं होना चाहिए। इवन दो दैट पर्टिकुलर 222E का जो डिविडेंड है एक लौटा, ठीक है ना, ये डिविडेंड अगर 1 करोड़ भी होगा ना, तभी भी इंसान के हाथ में टैक्स नहीं होना चाहिए, शेयर होल्डर के हाथ में टैक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंपनी ने ऑलरेडी 30% भर दिया है। इसलिए मेरी बात तो समझो, यहाँ पे देखो मैंने इस चार्ट में क्या लिखा है। अगर शेयर होल्डर ने डीम डिविडेंड अंडर सेक्शन 222E कमाया, 222E कमाया, तो ये फुल्ली एग्जेम्प्ट है। यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है, अप टू 10 लाख, अप टू 5 लाख, ऐसा कोई लिमिटेशन यहाँ पे नहीं है, डायरेक्टली पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? पहला 222E की बात कर लेते। इज इट क्लियर कि कंपनी ने 30% टैक्स भर दिया है, इसलिए शेयर होल्डर के हाथ में पूरा एग्जेम्प्ट है। इज इट क्लियर? हेलो, अरे यस नो कुछ yes sir. करो। Yes. ओके, अब यहाँ पे देखो जो 5 डिविडेंड है, डिविडेंड एंड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222A B C D एंड डिक्लेयर डिविडेंड, ये जो 5 डिविडेंड है, इसमें कंपनी ने इफेक्टिवली 20% का टैक्स भरा है। देखो कंपनी ने इफेक्टिवली 20% का टैक्स भरा है। और अगर अभी शेयर होल्डर ने इसको कमाया, वो भी 10 लाख के ऊपर कमाया, तो टेक्निकली ये तो 30% पे टैक्स होना चाहिए था। लेकिन आउट ऑफ 30% ओनली 20% इज बीइंग पेड बाय कंपनी। तो बचा हुआ 10% जो है हम शेयर होल्डर से लेते हैं अंडर सेक्शन 115 BBDA। बबड़ा याद आ रहा है तुमको? तो यहाँ पे देखो, Oh. डिक्लेयर डिविडेंड और डीम डिविडेंड, ठीक है ना, अगर आप स्पेसिफाइड असेसी रहोगे, मतलब इंडिविजुअल एचयूएफ फर्म एलएलपी एंड एक्सेट्रा, ठीक है ना, छोटे मोटे असेसी, और आपका एग्रीगेट डिविडेंड, एग्रीगेट डिविडेंड मतलब ए लिमिटेड ने आपको 4 लाख रुपया डिविडेंड दिया, लेकिन बी लिमिटेड ने आपको 8 लाख दिया, तो एग्रीगेट तो 12 लाख हो गया, कंपनी वाइज नहीं है। तो एग्रीगेट डिविडेंड अगर आपका लेस देन इक्वल टू अगर 10 लाख होगा, एग्रीगेट डिविडेंड अगर आपका लेस देन इक्वल टू 10 लाख होगा, तो वो तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा 1034 में। लेकिन अगर एग्रीगेट डिविडेंड आपका 10 लाख से ज्यादा होगा, 10 लाख से ज्यादा होगा, इट एक्सीड्स 10 लाख, तो जो एक्सेस है वही टैक्सेबल होगा, ठीक है ना, वही टैक्सेबल होगा एज IFOS अंडर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 एट द रेट ऑफ 10% अंडर सेक्शन 115 BBDA। क्या तुमको ये पॉइंट समझ में आया? इतना ये वाला पॉइंट, ये Hmm. ये 10% का लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे 20 भरा हुआ है, तो बचा हुआ 10 यहाँ से ले लिया, मतलब टोटल 30% टैक्स लेना था उनको डिविडेंड के ऊपर। हाँ, किसी को डाउट है क्या? किसी ने सर बोला? इज इट क्लियर? Hmm. ओके, अब ना उन्होंने बोला अदर देन स्पेसिफाइड एसएससी जो रहेंगे ना, जैसे डोमेस्टिक कंपनी, फंड्स, ट्रस्ट, इंस्टीट्यूशन, उनका अपना ही खुद का कुछ ना कुछ कैलकुलेशन चलता है इनकम टैक्स लॉ में, ठीक है ना। अब एक कंपनी ने दूसरे कंपनी से डिविडेंड कमाया, तो वो इसकी इनकम में जाके ऐड होके में वहीं पे टैक्स हो जाएगा ना यार। तो उन्होंने बोला कि ये काम करो, ये डबल टैक्सेशन हो जाएगा, क्योंकि मैं होल्डिंग सब्सिडरी समझते हो ना, होल्डिंग कंपनी ने डिविडेंड दिया, सॉरी सॉरी, सब्सिडियरी कंपनी ने डिविडेंड दिया होल्डिंग कंपनी को, और होल्डिंग कंपनी ने डिविडेंड दिया शेयर होल्डर्स को। तो यहाँ पे डबल टैक्सेशन ना हो जाए ना। सब्सिडरी कंपनी ने होल्डिंग कंपनी को डिविडेंड जब दिया, तो सब्सिडरी कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भर देगी, ठीक है ना। होल्डिंग कंपनी के हाथ में वो टैक्सेबल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि होल्डिंग कंपनी फिर से डिविडेंड किसको देने वाली है? शेयर होल्डर को। तो इस पूरे प्रोविजंस में ना 115O में अटमोस्ट केयर लिया गया है कि आपका डबल टैक्सेशन ना हो। इसलिए उन्होंने क्या लिखा देखो, अगर आप डोमेस्टिक कंपनी हो, म्यूचुअल फंड्स हो या फंड्स हो, ट्रस्ट हो, इंस्टीट्यूशंस हो, तो आपका डिविडेंड फुल्ली एग्जेम्प्ट, आपको 1034 नहीं, 115 BBDA नहीं लगता। 115 BBDA छोटे एसएससी को लगता है। छोटे एसएससी कौन? इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, एलएलपी एक्सेट्रा। ऐसी बात यहाँ पे की गई है। यहाँ तक बात क्लियर है? चलो आगे। Hmm. ओके चलो,
फिर अभी बात ये करनी है कि 222 में क्या क्या लिखा गया है। वैसे तो 222 पढ़ने के लिए बहुत टाइम लगता है, सीए फाइनल में आओ, सीए में फाइनल में आओ तो हम बात करेंगे कि 222 का डेप्थ कितना है, लेकिन अभी उतनी जरूरत नहीं है। मुझे इतना खाली बता दो, तुमको मैं अलग अलग क्वेश्चन ही पूछ लेता हूँ अलग पेज पे लेके। यहाँ पे जब कंपनी को इतना बड़ा टैक्स लग रहा है, तो आपको नहीं लग रहा कंपनी कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन करने का ट्राई करेगा? कंपनी को टैक्स लग रहा है ना 115, वो जो है वो कंपनी के ऊपर लग रहा है, तो कंपनी थोड़ा तो सोचेगा ना कुछ मैनिपुलेशन करने का। बोलो। हाँ तो सोचा कंपनी ने क्या किया, देखो हाँ हाँ एलाइट गुरुकुल लिमिटेड के पकड़ लो, आप सारे सारे लोग शेयर होल्डर हो, और आज अपना एलाइट गुरुकुल का एजीएम चल रहा है, और ये जो एजीएम है वो 12th एजीएम है, ठीक है ना। मतलब 12 साल हो गए पकड़ लो कंपनी को, या इसके आगे के 12 साल। अभी इस साल हमारा कंपनी इंकॉर्ट हुआ, इसके आगे के 12 साल की बात कर रहा हूं मैं। 12th ईयर का एजीएम चालू है, और आपने मेरे कंपनी में इन्वेस्ट किया था पकड़ लो ईयर 1 में, और 12th ईयर का एजीएम चल रहा है। तो मैं आपको बता रहा हूँ अलग अलग बताया, वो एमबीए वो वाले ग्राफ बनाते हैं ऐसे, ठीक है ना, पाई डायग्राम ऐसा चार्ट वगैरह बनाते हैं, ऐसे प्रेजेंटेशन चालू है एजीएम में। और मैं कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है ना, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, मैं आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ देखो कंपनी ने 0 टर्नओवर पे स्टार्ट किया था, एंड टुडे कंपनी इज स्टैंडिंग इन द टर्नओवर ऑफ 10,000 करोड़, ठीक है ना। 12 साल में हमने इतना ग्रो किया। कंपनी का प्रॉफिट 0 था, फिर हमने लॉस भी किया, लेकिन फिर हमने प्रॉफिट कमाया। आज कंपनी का प्रॉफिट जो है 2,000 करोड़ का है, ठीक है ना। कंपनी ने एक ब्रांच से बिजनेस चालू किया था, आज कंपनी के ऑल ओवर इंडिया एंड इंटरनेशनली मिनिमम कंपनी के 28 ब्रांचेस है, ठीक है ना। ये मैंने बोल दिया, ठीक है ना। कंपनी ने पहले एक बिजनेस या 2 बिजनेस चालू किए थे, ओनली 2 businesses were there. Now we are having portfolio of almost 40 businesses, 40 प्रोडक्ट हम सेल करते हैं, 40 डिफरेंट टाइप की सेगमेंट्स है हमारे। तो ऐसे में आपको सब बता रहा हूँ, आप लोग सब तालियां बजा रहे हो ये। और फिर मैंने बोला कंपनी ने लास्ट पूरे 12 साल में आप लोगों को 1 रुपए का भी डिविडेंड नहीं दिया है, ठीक है ना। 1 रुपए का भी डिविडेंड नहीं दिया, क्योंकि कंपनी ग्रोथ मोड में थी, तो कंपनी के पास पैसे रिटेन होना बहुत जरूरी था, रिजर्व्स एंड सरप्लस क्रिएट करना बहुत जरूरी था। तो मैंने 1 रुपए का भी डिविडेंड नहीं दिया, और आप लोगों को पता है करंट ईयर भी मैं आपको 1 रुपए का भी डिविडेंड नहीं दूंगा। हाउ डू यू फील, कम ऑन टेल मी, बोलो। बैड। बैड ना, मतलब अभी तक तो मतलब जो पाशा बीशा है वो तो चालू हो जाते, तेरे बाप की कंपनी है क्या? हाँ, मतलब चप्पल चप्पल बिप्पल निकाल के मारने आ जाते मेरे को साले। मतलब जब नहीं कमाया था तब नहीं दिया, ठीक है, अभी 2,000 करोड़ का प्रॉफिट लेके बैठा है, अभी तो दे दे, ठीक है ना। तो मैंने बोला देखो मैं डिविडेंड, देखो पहले तो अपनी चप्पल नीचे रखो, ठीक है ना। बात समझो, मैं डिविडेंड इसलिए नहीं दे रहा आपको क्योंकि डिविडेंड जो है वो मेरे पैट के बाद में से जाता है, और मैंने ऑलरेडी कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर अच्छा खासा टैक्स भर दिया है। डिविडेंड दूंगा तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगेगा, विच विल बी अ डबल कॉस्ट टू द कंपनी। तो मैं काम करता हूँ डिविडेंड नहीं दूंगा, लेकिन आप लोगों के लिए खाना अरेंज किया हमने आज, बहुत ही बढ़िया खाना, ठीक है ना। नॉनवेज वालों के लिए नॉनवेज और वेज वालों के लिए वेज। तो आपको नहीं लग रहा डिविडेंड तो वही हो गया, खाना दे दिया मतलब? नहीं नहीं, चलो जब खाना दे स्नैक्स दे दिया वहां पे भी मजा आ गया, लेकिन कम से कम गुस्सा तो कम होगा ना आप लोगों का, खाना है बोला तो। नहीं तो यूजुअली एजीएम में एक एक समोसा देते हैं और घर भेज देते हैं, हमने खाना रखा है हाँ शादी में जैसा खाना होता है वैसा हमने अच्छे से खाना रखा हुआ है, क्योंकि आज हम खुश है, आज बिजनेस उतने ऊपर जा चुका है। दूसरी बात, फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो जिसने जितना होल्डिंग किया हुआ है, जैसे अगर किसी ने अगर अप टू 100 शेयर्स होल्ड किए, ऐसे कुछ हमने स्लैब बनाया हुआ है। अब इफ समबडी हैज इन्वेस्टेड इन 100 शेयर्स, उसको आज मिलेगा एक ब्लूटूथ स्पीकर, ठीक है ना, उसको मिलेगा ब्लूटूथ स्पीकर। जिसने 1000 शेयर तक इन्वेस्ट किया है उसको मिलेगा एक मोबाइल। जिसने 10,000 शेयर तक इन्वेस्ट किया है उसको मिलेगा प्लाज्मा टीवी, ठीक है ना। जिसने 1 लाख शेयर इन्वेस्ट किया है उसको मिलेगा टाटा नैनो, नानो, ठीक है ना। किसी को वॉच, किसी को लैपटॉप, किसी को बाइक, मतलब अलग अलग कैटेगरीज को हमने क्या कर दिया, असेट्स दे दिए, ठीक है ना। आपको नहीं लग रहा हम आपको डिविडेंड दे ही रहे हैं? मैंने पैसे नहीं दिए आपको, मैंने डिविडेंड बोल के नहीं दिया, मैंने कुछ ऐसा ही मतलब वो बोलते हैं ना, कुछ ऐसा स्कीम वगैरह रखा कि चलो तुम लोग कंपनी में आ जाओ, मजे करते हैं मस्त में, ठीक है ना। और ये तुमको असेट दे दिया। आज घर जाते जाते तुम कोई मिक्सर लेके जा रहा है, कोई टीवी लेके जा रहा है, कोई मोबाइल लेके जा रहा है, कोई बाइक लेके जा रहा है, कोई ऑटो से आया था, कोई कार लेके जा रहा है। बताओ मैंने आपको डिविडेंड दिया कि नहीं दिया? दिया। दिया लेकिन डिविडेंड बोल के नहीं दिया। क्यों डिविडेंड बोल के नहीं दिया? क्योंकि अगर मैं डिविडेंड बोल के देता हूँ, जैसा नॉर्मली कंपनी लॉ में बोलते हो, अप्रूवल वगैरह लेना चाहिए, ऐसी वैसी बातें जो होती है,
तो मुझे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगता। अब मुझे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगेगा क्या आपके हिसाब से? नहीं लगेगा। नहीं लगेगा, क्योंकि मॉनिटरी डिविडेंड नहीं दिया, लेकिन डिविडेंड जैसा कुछ दे दिया, बेनिफिट दे दिया मैंने शेयर होल्डर को, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो शेयर होल्डर तो खुशी खुशी चले गए आज मेरे यहाँ से। ये असेट जो है ना, असेट जो कंपनी के असेट या कंपनी ने जो असेट डिस्ट्रीब्यूट किए ना, उसको इनकम टैक्स ने पकड़ा और बोला अच्छा ये डीम्ड डिविडेंड है, ये डिविडेंड नहीं है तो ये क्या है, ये डीम्ड डिविडेंड है। टाटा टाटा डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222A, सेक्शन 2 सेक्शन 2 क्लॉज 22 सब क्लॉज ए में इसको क्या बोला जाता है? डीम्ड डिविडेंड बोला जाता है। मैंने कैसे याद रखा है? मैंने कैसे याद रखा आपको बता देता हूं। ए स्टैंड्स फॉर असेट, कंपनी ने ए में क्या दिया आपको? असेट। ठीक है, अभी दूसरी बात करते हैं। मुझे बताओ, आप लोगों ने बोनस शेयर्स के बारे में सुना तो होगा, मैंने भी तो बात की थी। बोनस शेयर्स पता है ना कंपनी देती है कि नहीं बोनस शेयर्स? हाँ देती है, जब प्रॉफिट होता है तब। हाँ, तो मैं पूछ रहा हूं आप लोगों को, प्लीज अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड माय क्वेश्चन। बोनस कौन किसे देता है, कौन से फॉर्म में? मैंने आपको 3 क्वेश्चन पूछे। बोनस विल बी गिवन बाय whom, टू whom, इन विच फॉर्म? जल्दी बोलो, एकदम सिंपल। कंपनी देता है इक्विटी शेयर होल्डर को। कंपनी देता है इक्विटी शेयर होल्डर को। कौन से फॉर्म में? बोनस का फॉर्म क्या होता है? क्या जाता है बोनस में? क्या जाता है? मतलब पैसे जाते हैं, डिबेंचर जाते हैं, प्रेफरेंस शेयर जाते हैं, क्या जाता है? कंपनी इक्विटी शेयर ही देंगे इक्विटी शेयर होल्डर शेयर को। जाता है। थैंक यू पांडा। बोनस में क्या जाता है? इक्विटी शेयर जाता है। तो कंपनी गिव्स इक्विटी शेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर। दिस इज द नॉर्मल प्रैक्टिस। ये बहुत सारे कंपनीज में होता है। इसको मैंने आपको बताया था। ये कुछ नहीं हो रहा है, रिजर्व एंड सरप्लस में जो हमारा पैसा है, जो हमने अभी तक शेयर होल्डर को दिया नहीं है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड, तो हमारे वो रिजर्व एंड सरप्लस में पड़ा हुआ है। आज कंपनी के पास रिजर्व बहुत ज्यादा है, तो उसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल में। So issuing bonus is nothing but capitalization of your reserves and surpluses. So this is what you must understand. Now please understand, ये तो नॉर्मल हो गया। अब चोरी समझो, ठीक है ना। मैंने इक्विटी शेयर होल्डर को बुलाया और मैंने इक्विटी शेयर होल्डर को बोला सुनो बोनस चाहिए, उन्होंने बोला हाँ चाहिए। तो मैंने उनको बोला आपको ना मैं बोनस दे दूंगा लेकिन डिविडेंड नहीं दूंगा अगले आने वाले 10 साल तक। तो इक्विटी शेयर होल्डर वाले टेंशन में आ गया, अरे बोनस तो दे रहे लेकिन आगे 10 साल डिविडेंड नहीं देने की बात कर रहे लोग। तो मैंने बोला टेंशन मत लो, आपको मैं बोनस दूंगा इक्विटी शेयर होल्डर, सुना आपको मैं बोनस दूंगा, लेकिन बोनस दूंगा 8% डिबेंचर्स। ओहो, और 8% अगर डिबेंचर्स आपको मैं बोनस दे दूंगा तो हर साल क्या होगा पता है? अभी इसके आगे क्या होगा? डिबेंचर मैंने बोनस में दे दिए, इसके आगे क्या होगा बोलो? हर साल डिबेंचर का इंटरेस्ट मिलेगा उसको। डिबेंचर का इंटरेस्ट मिलेगा, और डिबेंचर के इंटरेस्ट के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, जैसा डिविडेंड के ऊपर टैक्स है। ऊपर से वो जो इंटरेस्ट हमने पे किया, क्योंकि वो इंटरेस्ट है, कॉस्ट है, पीएनएल अकाउंट को डेबिट भी होगा, उसका डिडक्शन भी मिलेगा। देखो डिविडेंड कॉस्ट नहीं है, डिविडेंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, और इंटरेस्ट बिजनेस का कॉस्ट होता है। तो आप समझ रहे हो, इन्होंने इंटरेस्ट के नाम के अंदर मतलब डिविडेंड को इंटरेस्ट का कवर लगा के दे रहे हो लोग अभी इसके आगे। अब समझ रहे हो मैंने क्या बोला, कैसा चोरी करते थे लोग। डिबेंचर कभी आपने नॉर्मली कभी सुना है क्या कि इक्विटी शेयर होल्डर को डिबेंचर बोनस दे दिया है? इक्विटी शेयर होल्डर को डिबेंचर बोनस में दिया, ऐसे कभी सुना है क्या अकाउंट्स में आपने? नो। नहीं, क्योंकि वो टैक्स प्लानिंग, टैक्स का इवेजन करने वाले लोग करते थे, नॉर्मली नहीं किया जाता। ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात हमने बोला वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर करके कुछ तो पागल लोग होते हैं ना कंपनी में, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ठीक है ना। उनको क्या करना होता है ना, उनको भी हम बोनस देते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देना मैंडेटरी होता है, पता है आप लोगों को। वो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होंगे तो मतलब इस साल देना है कि नहीं देना वो अलग बात है, लेकिन कभी ना कभी देना पड़ेगा। ये सुना है आपने, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को डिविडेंड देना मैंडेटरी होता है। ये एसपी वाले बोला। हाँ, ये कौन से वाले? एसपी वाले? एसपी वाले उनको कैसे पता? यस सर, सालो एसपी और एसपी में अकाउंट्स होता वालों का है। क्या है? ये अकाउंट्स वालों का क्वेश्चन है। अकाउंट्स में आपको पढ़ा है पढ़ा ना इसलिए।
हाँ अकाउंट्स पढ़ा होगा एसपी ना। में पढ़ाया है ना इसे। अरे हाँ एसपी, ना। अरे एसपी तो 12वीं में था ना, 12th स्टैंडर्ड में था। मैं तो पूछ रहा हूँ अकाउंट्स तो हर स्टैंडर्ड में होता है। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस करके आप लोगों ने सुने होंगे। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस का डिविडेंड जो होता है वो बाय डिफॉल्ट उनको देना ही पड़ता है। तो अभी वो अक्यूमुलेट हो गया था, क्या 4-5 सालों से बहुत ज्यादा डिविडेंड अक्यूमुलेट हो गया था, हमने दिया नहीं था उनको। तो हमने उनको बोला सुनो प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों, इधर आओ, तुमको मैं बोनस देता हूँ इक्विटी शेयर्स का। ओ हो, इक्विटी शेयर्स दे दिया उनको हमने बोनस में, क्योंकि वो भी तो ओनर ही है, तो उनको इक्विटी शेयर दे दिया। ऐसा भी कभी आपने सुना है क्या कि हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर बोनस में दिया है? इज इट नॉर्मल और अब नॉर्मल? यू जस्ट टेल मी दिस। abnormal. नॉर्मल। मैंने आपको 3 सिचुएशन पढ़ा है बोनस के। बोनस का सिचुएशन 1, बोनस का सिचुएशन 2 एंड बोनस का सिचुएशन 3। बोनस के सिचुएशन 1 एंड 2 जो है, 1 जो है ना वो जनरल है, वो नॉर्मल है, वो होते रहता है। 2 एंड 3 जो है ना वो एक्सेप्शनल है, एबनॉर्मल है, और ये टैक्स इवेजन के लिए किया जाता है। इसके ऊपर इनकम टैक्स ने सेक्शन लगा दिया। यहाँ पे एनसीसी टैक्स की चोरी करना चाहता था, वहां पे सेक्शन लगा दिया, सेक्शन 2 क्लॉज 22 सब क्लॉज बी को कैसे याद रखा मैंने? बी फॉर बोनस, ए फॉर असेट। तुमको समझ रहा है मैंने क्या बोला? बी फॉर बोनस, ए। आगे चलूं? जाने दो ना आगे मुझे प्लीज, हाँ तो बोलते रहो यार, सुबह सुबह जाओ। अच्छा लगता है ऐसा, हाँ बोलते रहते हो तो अच्छा लगता है, ठीक है ना? कोई ऐसे भी बोल सकता है हाँ, ठीक है चलेगा, ठीक है आ जाओ। मैं क्या बता रहा हूँ, अब बात करूंगा मैं लिक्विडेशन की। लिक्विडेशन आपने सुना है? लिक्विडेशन, टाटा टाटा टा, लिक्विडेशन मतलब क्या? कैश में कन्वर्ट करने का, जो भी असेट होगा उसको। ये चुप रे, कैश में कन्वर्ट करने का एसेट होगा। लिक्विडेशन मतलब क्या? कंपनी के टर्म्स में पूछ रहा हूँ, यहाँ पे कंपनी की बात कर रहे हैं ना। कंपनी में लिक्विडेशन मतलब क्या? कंपनी में लिक्विडेशन मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय लिक्विडेशन? ये लिक्विडेशन मतलब नहीं पता तुम लोगों को? सालो क्लोजर, कंपनी का असेट असेट को बेच के क्रेडिटर को पेमेंट कर। हाँ तो क्लोजर ऑफ द कंपनी, लिक्विडेशन मतलब क्लोजर ऑफ द कंपनी, जिसको तुम लोग पार्टनरशिप में क्या बोलते हैं उसको? डिसोल्यूशन। पार्टनरशिप में क्या बोलते हो? डिसोल्यूशन। उसको कंपनी के केस में क्या बोला जाता है? लिक्विडेशन। वाइंडिंग अप भी बोलते हैं इसको। वाइंडिंग अप सुना है आप लोगों ने? हाँ। अब मुझे बताओ, ये कंपनी का बैलेंस शीट है, ठीक है ना? ये कंपनी का बैलेंस शीट है, पकड़ लो। यहाँ पे असेट है 5 लाख के। कितने के असेट है? 5 लाख के। और आपका शेयर कैपिटल है 2 लाख रुपया, और यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस है 3 लाख रुपया। आपको ये समझ रहा है ये कंपनी ने, और आप ही एक ही शेयर होल्डर बच गए हो अभी, मान लो एक ही हो या 2 हो, जो भी है आप ही शेयर होल्डर हो, ठीक है ना? आपके अलावा कोई शेयर होल्डर नहीं है, और कंपनी का सारे असेट बिक गए, सारे लाइबिलिटीज बिक गई। इनफैक्ट मैं इस असेट को मैं बैंक बना देता हूँ, ठीक है ना? इसको बैंक बैलेंस बना देता हूँ। कंपनी के पास अभी बैंक बैलेंस बचा हुआ है। मैं लेक्चर लूँ कि नहीं लूँ, तुम लोगों का भाषण सुनो। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि 5 लाख का बैंक बैलेंस है, और शेयर कैपिटल 2 लाख रुपए का, और रिजर्व एंड सरप्लस 3 लाख रुपए का है, ठीक है ना? अब ये रिजर्व एंड सरप्लस 3 लाख रुपए का जो है, आज कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है, एंड यू आर द ओनली शेयर होल्डर लेफ्ट। तो आपको कंपनी पैसे कितने देगा मुझे बताओ? यू आर द ओनली शेयर होल्डर लेफ्ट, ऑल असेट्स आर सोल्ड, ऑल लाइबिलिटीज आर पेड ऑफ, नाउ दिस इज द बैलेंस, दिस इज द बैलेंस शीट, दिस इज द ओनली थिंग व्हिच इज लेफ्ट, और ये शेयर कैपिटल आप ही का है। आप कितने पैसे लेकर जाओगे? कंपनी का बैलेंस शीट क्लोज करना पड़ेगा ना, लिक्विडेशन चालू है। पूरा पूरा मतलब कितना? नंबर बोलो ना। 2 आप लोग 2 लाख लेके जाओगे, और 3 लाख किसको रख के जाओगे? 5 तो 5 लेके जाओगे ना यार, तुम ही तो ओनर हो कंपनी के। कंपनी बंद होने वाली है, you are the last owner, I'm telling you, no, you are the last owner. Now whatever left is yours,
यू आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी, यू आर इक्विटी शेयर होल्डर ना। इक्विटी शेयर होल्डर सारे के सारे असेट लास्ट में जो बच गया वो लेके जाएगा, और कोई तो है ही नहीं वहां पे कंपनी में लेने के लिए। तो आपकी लाइबिलिटी कितनी थी कंपनी, मतलब कंपनी में आपका राइट कितने का था, हाउ मच डिड यू ओन इन अ कंपनी एंड कंपनी ओज टू यू, कितना कंपनी ओ कर रहा था आपको, क्या लाइबिलिटी थी कंपनी के साइड से, जल्दी बोलो। 2 लाख का, लेकिन आप लेकर कितना जा रहे हो, आप लेकर 5 कितना जा रहे हो, 5। तो एक्स्ट्रा जो 3 लाख रुपया लेके जा रहे हो वो क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस कैसे क्रिएट हुआ, क्योंकि कंपनी ने इसके पहले कुछ साल आपको डिविडेंड नहीं दिया होगा, तो आपको नहीं लग रहा ये डिविडेंड जैसा ही कुछ है जो लेके जा रहे हो आप 3 लाख रुपया। 2 लाख तो लाइबिलिटी थी, उसके ऊपर टैक्स नहीं लग सकता, लेकिन ये जो 3 लाख लेके जा रहे हो आप, आपको नहीं लग रहा ये कंपनी का प्रॉफिट ही है जो कंपनी ने इसके पहले डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, अभी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन ही है ना ये 3 लाख रुपया। तो इसको हमने क्या बोला, हमने एक सेक्शन यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, सेक्शन 222C, 222C, ठीक है ना। सी मैंने कैसे याद रखा है, सी एक्चुअली बात करता है लिक्विडेशन का, लेकिन लिक्विडेशन का वर्ड नहीं मिल रहा था, तो मैंने क्लोजर करके याद रखा, मैंने क्या करके याद रखा है, क्लोजर करके, ठीक है ना। 222C मतलब क्लोजर, 222C मतलब क्या, क्लोजर करके मैंने याद रखा हुआ है इसको, ठीक है ना। तुम लोग याद रख पाओगे, ए फॉर एसेट, बी फॉर बोनस, सी फॉर क्लोजर ऑफ अ कंपनी मतलब लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, ऐसे मैंने इसको याद रखा हुआ है। तो उन्होंने बोला ये जो 3 लाख रुपया है ना, ये डीम्ड डिविडेंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डीम्ड डिविडेंड। लेकिन आपको मिला तो 5 लाख रुपया, तो उन्होंने बोला हाँ डीम्ड डिविडेंड जो होता है ना, वो मैक्सिमम टू दी एक्सटेंट ऑफ accumulated profit, maximum to the extent of accumulated profit। बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस को accumulated profit बोला जाता है। इज इट क्लियर, डीम डिविडेंड विल बी मैक्सिमम टू द एक्सटेंट ऑफ accumulated profit। तो मुझे मिला तो 5 लाख रुपया, लेकिन डीम डिविडेंड जो माना जाएगा वो 3 लाख रुपया ही माना जाएगा, क्योंकि कंपनी अगर चाहती भी तभी भी 5 लाख का डिविडेंड नहीं देती, मैक्सिमम 3 लाख का ही डिविडेंड दे पाती अगर कंपनी को डिविडेंड देना होता, ताकि उतना ही उनके पास प्रॉफिट है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? हाँ चलो, तो आगे चलता हूँ। अभी मेरे पास कितना टाइम है, लेस देन 1 मिनट है, आगे चलने की कोई बात नहीं है। 3 क्लॉजेस मेरे हो गए, बाकी क्लॉजेस ये प्रोसेस होने के बाद। एबीसी मतलब एबीसी कैसे याद रखोगे, ए फॉर एसेट, बी फॉर बोनस, सी फॉर क्लोजर। ये सारे डीम डिविडेंड है, मतलब कंपनी यहाँ पे मैनिपुलेशन कर रही है। समझा तुमको? ओके, बाकी का फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। बाकी लोगों को उठा दो, अपने फ्रेंड्स लोगों को उठा दो फोन करके।